Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum fourth class. I hope you are all safe and sound in your homes. अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें. बड़ों का कहना माने. These are the all instructions that are given to you in your class 2. आपकी क्लासेस में भी आपको इंस्ट्रक्शंस की जाती हैं कि इन सारे कामों का ख्याल रखा करें. एक बहुत अच्छा सिटीज़न, एक बहुत अच्छा शहरी वही है जो अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखे. So for class today is our lecture number 3 of lesson number 1. Lesson number 1 का lecture number 3 है आज. So मैं आपको पहले बताती चलूँ कि हमने lesson number 1 की रीडिंग कंप्लीट हम कर चुके हैं. As you all know this कि हम lesson number 1 की रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं. एक दफ़ा दोबारा मैं आपको गो थ्रू करवा देती हूँ. मैं दोबारा से रीडिंग पढ़ लेती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए और अगर कोई भी वर्ड ऐसा है जो आपको पढ़ना नहीं आ रहा तो आप उसको भी दोबारा प्रोनाउंस करना सीख सकें. Let we have started. The swan is a beautiful and the largest waterfowl. We are on lesson number 1, page number 7, graceful swans. All of you have to open your books of English A. Very good. The swan is a beautiful and the largest waterfowl. Its long white neck looks very decent. Our own lovely swan is found in Northern Europe, Northern America, even in Australia. Nowadays, it is a sad fact that it has been hunted and killed only for meat. अगर इसका M हटा दिया जाए तो ये क्या बनेगा? Eat. वेरी गुड. आपको पता है ना हम मेक न्यू वर्ड्स पढ़ते हैं तो मेक न्यू वर्ड्स में इसी तरह होता है कि आपको एक वर्ड दे दिया जाता है, उसमें से एक को आपको काट दिया जाता है और बाकी आपने बताना होता है कि क्या वर्ड बने. It is said that Richard I brought back the swan to England after a crusade. Then this beautiful bird attained a high position. It was considered a royal bird. It is still considered a royal bird which belongs to the Queen. All the swans are not white only. The swans found in hemisphere are generally white. Their neck, N-E-C-K, neck is longer than their body. In some parts of America, there are white swans with black necks. The black swans of Australia, which have red belly and glossy black feathers, are the most beautiful swan of our world. We find their lovely pictures on the postcards and postage stamps. Turn page number 8. The swans build an untidy nest on the land to lay eggs. Female birds also help in making their home. It is done in the spring season. They dislike everyone who tries to approach their nest. Whether it is a man or a bird, they can attack or even kill other birds also. They have proved very dangerous in these days. The swans protect their young ones very carefully. They guard their baby birds till they are grown up. In their early days, they have brown feathers. With the passage of time, they are changed into white. In winter, they live together in groups. They guard their living areas. If a young fowl is lost, they try their best to find out the lost one. So for class, this is all our reading of lesson number 1. We have done our fill in the blanks भी हमने पिछले lecture में कर चुके हैं. In our previous lecture we have done our fill in the blanks and today I am again going to the reading of lesson number 1. Now we are going to start our word sentences. Words meaning मैं आपको previous lecture में करवा चुकी हूँ and now we are going to do the word sentences of lesson number 1. All of you have to pick up your copies that was given to you by National Public School. Here it is.
This is your copy that was given to you by National Public School, and we have done our वर्ड्स मीनिंग. अगेन मैं आपको बताती चलूँ, सबसे पहले हम पेज रेडी करते हैं जिसमें लेसन नंबर 1 उसका नाम डिटेल लिख देते हैं, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज. आफ्टर दैट हमने वर्ड्स मीनिंग लास्ट लेक्चर में कर लिए थे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो वर्ड्स मीनिंग भी याद कर लिए होंगे. और आपके घर में या आपके कोई भी अगर आपको पढ़ाता है तो आप कोशिश किया करें कि आप उसको वो वर्ड्स मीनिंग सुना दिया करें. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू इज़ ड्रॉ द मार्जिन लाइन्स एट द कॉर्नर ऑफ योर पेजेस एंड you have to draw the margin line on approximate 2 pages. After that we are going to write the date and day on the top of our pages, and today is 25th of June. We are write 25 and a little th over there, 25th of June 2020, and at the middle of your page you are going to write the classwork like this, and at the right corner of the page you are going to write the day, that is today is Thursday. This is it. Have you seen this? Very good. After that you are going to write topic, and today's topic is word sentences. So our first word is guard. And what is the meaning of guard? G-U-A-R-D, guard. हिफाजत करना. Swans guard their living areas. Swans guard their living areas. Number 2, careful. We should do our work carefully. हमें अपना काम बहुत एहतियात से करना चाहिए. We should do our work carefully. Next is number 3, picture. We find swans pictures on postcard. हमें पोस्ट कार्ड्स पर स्वान की पिक्चर्स मिली. नंबर 4, हंटेड, शिकार करना. क्यों शिकार किया जाता है स्वान्स का? मीट की खातिर. स्वान हैज़ बीन hunted and killed only for meat. For class, remember one thing, you have to do your work in a very neat and clean writing and do give one finger distance after each word. Last one is lost.
L-O-S-T, lost. Ahmed lost his bag at bus stand. Ahmed lost his bag at bus stand. One more thing for class, you are going to draw the line after each word that was written by pointer. Like this for topic and here. After that we are going to do our question answers. Draw margin lines on another pages. Again, here we are going to write topic. And our topic is questions, answers. क्वेश्चंस जो हैं वो आप बुक से देख के भी लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे लिखे हुए हैं. Let me open my book to write the questions. Okay, so our question number 1. Which is the prettiest waterfowl? सबसे प्यारा दरियाई परिंदा कौन सा है? जी, क्या नाम है सबसे प्यारे दरियाई परिंदे का? वेरी गुड, स्वान. Swan is the prettiest waterfowl. Question number 2. In which parts of the world the swans are found? Answer. For class, again I am going to tell you that you have to do your work in a very neat and clean writing and give 1 finger distance after each word. Okay, swans कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? दुनिया के किस हिस्से में पाए जाते हैं? The swans are found in Northern Europe, Northern America. Try to give a definite pattern that NPS given to you. America and in Australia.
Australia. Okay, after that, question number 3. फॉर वट पर्पज़ इट इज़ हंटेड, इसको क्यों कत्ल किया जाता है, इसका शिकार क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? मीट के लिए, खाने के लिए, गोश्त की खातिर इस बेचारे को मार दिया जाता है. इट हैज़ बीन hunted and killed only for meat. Next is our question number 4. Second last. In which country, किस मुल्क में, its picture is printed on postage stamps. किस कंट्री की टिकटों पर इसकी पिक्चर्स को प्रिंट किया गया है, छापा गया है? कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया. So we have write it in Australia. Its pictures is printed on postage stamps. Next is our question number 5, our last question, and it is, what is the color of the swan's feather in their early age? What is the color of swan's feathers in their early age? उनकी इब्तदाई उम्र में उनके परों का रंग कैसा होता है? हमने पढ़ा था ना, दे हैव ब्राउन फेदर्स, ब्राउन कलर के होते हैं. They have brown feathers in their early age. Okay, for class, we have complete our words, sentences and question answers of lesson number 1. At the end, we are going to draw an ending line that shows that our lesson or our today's work is going to be complete. As you all see this, again मैं आपको एक दफ़ा दोबारा क्वेश्चंस के आंसर्स बता दूँ. विच इज़ द प्रीटीएस्ट वाटरफाउल? स्वान इज़ द प्रीटीएस्ट वाटरफाउल. इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द swans are found? The swans are found in Northern Europe, Northern America and in Australia. For what purpose it is hunted? It has been hunted and killed only for meat. In which country its picture is printed on postage stamps? In Australia, its picture is printed on postage stamps. What is the color of the swan's feathers in their early age? They have brown feathers in their early age. Okay, for class, we are going to complete our lesson
इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन आंसर। होपफुली आपको जो मैंने आज पढ़ाया है वो याद हो गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको याद कर लेंगे, समझ आपको आई थिंक सो आ चुकी होगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज ऑफ आवर लेसन नंबर 1। हियर इट इज़। सबसे पहले लिखा हुआ है उन्होंने add note to the following sentences. Here it is, as you all see, add note to the following sentences. You will have to change the verbs in some of them. कि आपने इनमें से following sentences में नोट लगा देना है और उनके वर्ब चेंज कर देने हैं। एक बात मैं हमेशा आपको बता दूं, जब नोट लग जाता है ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो कहीं पर भी अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो आप उसको फर्स्ट फॉर्म कर देंगे और बाकी किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। और ऐसा होता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होती है ना फोर क्लास, जहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाता है, तो वहाँ पे जब आप नोट लगा देते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है आई वो दे यू अगर आ रहा है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे डू नॉट लगेगा। और अगर ही शी इट या किसी का नाम आ रहा है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे डज नॉट लगेगा। सो फर्स्टली यू आर हैव टू ड्रॉ द लाइन। आपको सबसे पहले क्या करना है, इन सारी के आगे एक लाइन ड्रॉ करनी है ताकि आप उस पर लिख सकें। यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। इनके आगे लाइंस ड्रॉ कर लें ताकि आपका जो काम है वो नीट एंड क्लीन हो। हमेशा याद रखें, बुक पर जब आप काम करने लगते हैं तो लाइंस ड्रॉ कर लिया करें ताकि आपका काम परफेक्ट हो। चलिए, आई शैल बाय अ पीकॉक। नॉट लगाना है, आई शैल नॉट बाय अ पीकॉक। I shall not buy a peacock. Next is the police caught the thief. अब यहाँ पे caught है, that is the second form of catch. तो जब हम catch लगाएंगे तो not लगाएंगे तो catch आ जाएगा। The police, और ये आपकी past tense है क्योंकि second form है तो यहाँ पे did आ जाएगा। The police did not catch the thief. Salman was sitting quiet, was not. हेल्पिंग वर्ब पहले से दे दिया गया है, बस इसके आगे नॉट लगा देना है। सलमान वॉज नॉट सिटिंग क्वाइट। दुआ इज प्लेइंग विद हर डॉल्स, हेल्पिंग वर्ब दे दिया गया है, इसके बाद सिर्फ नॉट लगा देंगे। दुआ इज नॉट प्लेइंग with her doll. फ़ारूक हेल्प्स द पुअर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फ़ारूक चूँकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ पर डज़ नॉट लगाएंगे। अगर यहाँ पे ही आई वो दे यू में से कुछ होता तो हम यहाँ पे डू नॉट लगाते। फ़ारूक डज़ नॉट हेल्प्स द पुअर। सो फॉर क्लास दिस इज़ ऑल, वी हैव टू कंप्लीट दिस। नीचे आ जाए, उन्होंने लिखा हुआ है यूज़ कंजंक्शंस फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। बेसिकली कंजंक्शंस वो चीज़ें होती हैं जो दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करता है, उनको हम कंजंक्शंस कहते हैं। एज यू ऑल सी दिस। अब देखते हैं, सलमान इज़ यंग डैश स्मार्ट। सलमान जवान है और स्मार्ट भी है, और की इंग्लिश आ जाएगी एंड, AND, एंड, जो कि कंजंक्शन है। जन्नत इज़ शाउटिंग डैश शी इज़ एंग्री। जन्नत चिल्ला रही है क्योंकि वो गुस्से में है, और क्योंकि की इंग्लिश बिकॉज। मुनीर इज़ हंगरी, मुनीर भूखा है, एंड हिज पॉकेट इज़ एम्प्टी फॉर मैनी डेज, क्योंकि उसकी जो जेब है वो काफ़ी दिनों से खाली है, क्योंकि बिकॉज। अली इज़ नॉट प्रेजेंट डैश ही इज़ इल। अली गैर हाजिर है क्योंकि वो बीमार है, बिकॉज। वी नो डैश ही इज़ डॉक्टर, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वो एक डॉक्टर है। नासिर इज़ पुअर डैश ऑनेस्ट, नासिर गरीब है लेकिन ईमानदार है, लेकिन बट।
ओके नेक्स्ट पे आ जाए कंपेयरिंग थिंग्स। उन्होंने कहा है कि एडजेक्टिव चीज़ें इनको कहते हैं कि ब्राइट ब्राइटर, कूल कूलर, बिग बिगर। एडजेक्टिव वो कहते हैं इनको। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, एक होती है सिंपल, एक होती है कंपैरेटिव और एक होती है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव के एंड पे EST आ जाता है, कंपैरेटिव के एंड पे ER आ जाता है, और जो सिंपल होती है उसके एंड पे कुछ भी नहीं आता, वो सिंपल वर्ड्स होते हैं। अब हमने ये यहाँ पे लगाने हैं फिल इन द ब्लैंक्स, इनको प्रॉपर वर्ड्स के साथ फिलअप करना है। आई एम डैश देन अली, आई एम स्मॉलर। फातिमा इज़ डैश देन हर सिस्टर, वाइजर। फातिमा अपनी बहन से अक्लमंद है। दिस टॉर्च इज़ डैश देन योर्स, ब्राइटर। मेरी ये टॉर्च तुम्हारी टॉर्च से ज़्यादा चमकदार है। योर कोट इज़ डैश देन माइन, योर कोट इज़ चीपर। तुम्हारा कोट मेरे कोट से सस्ता है। अ लॉरी इज़ डैश देन अ कार, लॉरी कार से बड़ी होती है, बिगर। माई ब्रदर इज़ डैश देन जाहिद, मेरा भाई जाहिद से लंबा है। ओके फॉर क्लास वी हैव कंप्लीट आवर एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 1। नीचे उन्होंने दिया हुआ है कि रीड द वर्ड्स अलाउड। इन वर्ड्स को ऊंची पढ़ना है कि साउंड सी की साउंड क्या प्रोड्यूस हो रही है। चले मेरे साथ पढ़ें। सबसे पहले कैच, कैटल, लाइक के इन कैट, कि सी की साउंड के की प्रोड्यूस हो रही है, जैसे एक्ट, फैक्ट, फ्रैक्चर। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एस की साउंड प्रोड्यूस करनी है इसमें, फेस, रेस, राइस, पेस, पैसिफिक, प्लेस। ओके सो वी हैव कंप्लीट आवर लेसन नंबर 1 इन अ वेरी गुड मैनर। बहुत अच्छे तरीके से हम अपना लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। फॉर क्लास मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी किस्म को कोई भी इशू हो रहा है तो आप स्कूल के नंबर पे कॉल करके हमसे उसकी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं। ओके अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जो आपका NPS का यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें फ़ायदा आपका ही है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिस आउट नहीं करेंगे। दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।